फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपने यूट्यूब वीडियो देखी है, एक दफ़ा कंफर्म कर दीजिए कि आप सब ने वो वीडियो देख ली है। होपफुली आपने वीडियो देख ली, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे जो कोड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द कोड दैट यू हैव वॉच इन द यूट्यूब वीडियो। द ओनली डिफरेंस हेयर इज़ दैट मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर की जगह क्लास बनाई है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो गया कि मेरे पास डाटा मेंबर्स प्राइवेट हो गए, वहाँ पे पब्लिक थे। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव कर ली एग्जांपल को जो वहाँ पे थी, तो आप लोग उस लिहाज से इसको देख सकते हैं। तो ये जो मैंने सिलेक्शन की है क्लास, ये मैंने इसका नाम भी चेंज कर दी क्योंकि वेक्टर क्लास जो थी, दैट डजंट मेक सेंस दैट वी हैव अ वेक्टर क्लास दैट हैज ओनली टू डाटा मेंबर्स x and y. So I have changed the name as data, and the data members are x and y, the same as they were in the um, YouTube video. चलें जी। अच्छा जी, तो इस क्लास के अंदर हमारे पास दो डाटा मेंबर्स हैं। वी हैव टू डाटा मेंबर्स एक्स एंड वाई, द सेम डाटा टाइप एज फ्लोट। Secondly, I have added, as the data members are private, so I have added public getter and setters functions. So getters are always constant, of course, you know that, and setters are non-constant. Can does anyone want me to explain the const before this get function? ठीक है जी। तो ओके, सो लेकिन इस एग्जांपल में स्पेसिफिकली यू विल नीड दिस फंक्शन टू बी कांस्टेंट। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल। सो we'll actually get to know okay, why this is constant. This function get x and get y is constant. Okay, so um, I'll straight away go to the main function, and you see that I have created two objects of this class data. The first object has value 0 0 and second object has value 5 and 6. um, and after that, if you see, um, I have written this statement: diff is equal to second minus first. So let's go to this second minus first. Of course, this operation is a subtraction operation, and it is between two objects of a user defined data type. The data type is data. Let me, I guess, rename this. Instead of data, let me call it object. Okay. Okay. So what I've done is I have called this minus operator on two user-defined objects. So I need this operation to be defined in the class. Okay. Let's go back in the class. और यहाँ पे अगर हम देखें तो I have defined exactly following the lines of that audio lecture, the YouTube lecture. I've created an add function, and in this add function, I have used this same plus operator. I hope if you have watched that YouTube video, then you would be clear why I've created another function add, and then I have this operator plus function. So this function is actually adding two objects of this type, and one object is other. And what is the second object? Can you write down? Send me a message. Which one is the second object? Yes, it is this object. Okay, so I have called this operator plus or operator minus. In main, I have called this operator minus. So this operator minus actually, here you can see this operator minus is called. So this second operator, the second object, is actually the left hand side object, and this left hand side object is passed as this pointer. So here in this function, I have second as this pointer and first as other. Okay,
तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये अदर जो है दिस इज द राइट हैंड साइड। अच्छा, अब यहाँ पे वही पुराना कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नई चीज ऐड नहीं हुई हुई। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस इन द अर्ली लेक्चर, दैट दिस माइनस ऑपरेटर इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू चेंज एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो माइनस ऑपरेटर का फंक्शन में लिखा हुआ है, इसमें जो ऑब्जेक्ट था ये एग्जैक्टली उसी डिज़ाइन पे बना हुआ है। इसको मुझे दोबारा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चीज़ ऐड हुई है वो ये है कि द फंक्शन इज़ आल्सो कांस्टेंट। ऑफ कोर्स इसकी सेंस बनती है कि इसने चेंज नहीं करना, लेकिन जो हम लोगों ने डिज़ाइन पढ़ा था उसमें हमने इसको मेंबर फंक्शन बनाया ही नहीं था। एक्चुअली जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन सिर्फ ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि करंट ऑब्जेक्ट यानी कि दिस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं करता, अगर उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको नॉन मेंबर बनाना है। ठीक है, आज हम देखेंगे नॉन मेंबर कैसे बनाना होता है। अभी हमने मेंबर बनाया हुआ तो इसलिए इसको कांस्टेंट बना दिया, लेकिन अगर हम नॉन मेंबर बनाते तो फिर ये कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट वाला केस हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैंने ये जो फंक्शन है इसके अंदर x माइनस अदर एक्स और y माइनस अदर वाई कर दिया। x और y जो हैं ये दोनों दिस के डाटा मेंबर्स हैं और अदर डॉट एक्स और अदर डॉट वाई को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और सेकेंडली मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डाटा टाइप रिटर्न की हुई मैंने भी चेंज किया जी। ऑब्जेक्ट जो है ये मैंने इसका नाम चेंज कर दिया क्लास का नाम अब ऑब्जेक्ट है, डाटा नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज द नेम ऑफ द क्लास, राइट। तो अभी मैंने रीनेम किया था आपके सामने। तो दिस ऑब्जेक्ट इज रिटर्न। इफ यू आर आस्किंग कि ये रेफरेंस क्यों नहीं रिटर्न हो रहा, तो इसकी सिंपल रीजन ये है कि जो मैंने सब्ट्रैक्शन करनी थी इट इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जो कि खुद चेंज नहीं हो रहे हैं। तो देयर मस्ट बी सम अदर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैं चेंज करता हूँ, और जो वो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। मैंने एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके कंस्ट्रक्टर में ये दो वैल्यूज पास की हैं, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर दिया। ठीक है, यस एग्जैक्टली, इट्स गोना क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। और एक्चुअली जो रिटर्न कर रहा है उसका रेफरेंस नहीं कर रहा, क्योंकि अगर रेफरेंस रिटर्न करता तो दिस ऑब्जेक्ट इज अ लोकल ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बिफोर दिस फंक्शन इज फिनिश्ड। तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट की कॉपी रिटर्न करनी है, मुझे उसका रेफरेंस रिटर्न नहीं करना। वेरिएबल नेम से क्या होगा, वेरिएबल मैंने क्रिएट नहीं किया, मैंने एक्चुअली यहीं पे ही ऑब्जेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट में ही क्रिएट किया है और वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, उसको उसकी कॉपी रिटर्न कर दिया। तो नया वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। जैसे आप करते हैं ना कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी हो, दो इंटीजर्स का सम, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं ना रिटर्न। तो मैंने वही काम किया, मुझे पता है कि दो वैल्यूज को सम करने के बाद एक नई वैल्यू ही रिटर्न करनी है, तो क्यों मैं अलग से यहाँ पे अलग से कोई इंटीजर बनाता है एक्स और उसके साथ कुछ यूज करता है। ठीक है जी, गॉट इट। चलिए जी, अब इस फंक्शन से हम आगे चलते हैं। मैंने एग्जैक्टली वही डिज़ाइन यहाँ पे यूज़ किया जो कि यूट्यूब लेक्चर में था, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करता। मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट के फंक्शन बनाए, मैंने ऐड और मल्टीप्लाई का फंक्शन नहीं बनाया। मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट का बनाया क्योंकि शायद इसकी ज़्यादा सेंस बनती थी। दो वैल्यूज़ एक्स वाई, उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का ज़्यादा सिंपल है जी। ऑब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि एक इस टाइप की चीज़ रिटर्न करनी है। मैं अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ इस क्लास का और उसमें ये दो वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ। मैं सिंपली ऐसे नहीं लिख सकता कि मैं लिख दूँ यहाँ पे सिंपल के रिटर्न, और रिटर्न के साथ मैं लिख दूँ मे बी एक्स माइनस अदर डॉट एक्स और कॉमा लगा के वाई माइनस अदर डॉट वाई। इससे क्या बनेगा, एक्चुअली कंपाइलर को नहीं पता कि कॉमा कर क्या रहा है। ठीक है, तो अकेला कॉमा तो नहीं बताएगा ना कि ऑब्जेक्ट बनाना था। आई नीड टू राइट के ये जो स्टेटमेंट है ये एक नया ऑब्जेक्ट बना रही है। ठीक है, अच्छा चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। मैंने इसको यहाँ पे वापस मेन पे जा रहा हूँ। मैंने इसको कॉल किया तो इस एक स्टेटमेंट में दो ऑपरेटर्स बेसिकली कॉल हो रहे हैं। एक तो सब्ट्रैक्शन था, सेकंड माइनस फर्स्ट। इसके अगेंस्ट मुझे एक नया ऑब्जेक्ट मिल गया, जो ऑब्जेक्ट मैंने उस फंक्शन में क्रिएट किया था उस ऑब्जेक्ट की कॉपी बन के मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे कॉपी आ गई तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या बनी, ऑब्जेक्ट डिफ इज इक्वल टू द न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। तो टाइप करें, कैन यू आंसर के डिफ कैसे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे कोई और फंक्शन भी कॉल हो रहा है नहीं जी, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। यही मैं सुनना चाह रहा था कि
कोई कहे कि दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज नॉट एन असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। मैंने जानबूझ के इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऑपरेटर का लफ्ज भी यूज किया था कि दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। जी, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये जिस बच्चे ने अपना नाम लेनोवो रखा हुआ है, मेरा ख्याल है लेनोवो उसका नाम नहीं है। प्लीज चेंज योर नेम सो आई नो कि आप कौन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। वरना मे बी अटेंडेंस में आप मार्क ना हो, राइट। थैंक यू। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे डिफ जो ऑब्जेक्ट है, इस डिफ ऑब्जेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को राइट हैंड साइड से जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है उसने एक ऑब्जेक्ट पास किया एंड दैट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन द कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ डिफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो आई हैव नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट एंड अ डिफ ऑब्जेक्ट, राइट। और इस डिफ ऑब्जेक्ट तक पहुंचते पहुंचते मैंने एक्चुअली अपने पास ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इसको यूज किया। आफ्टर दैट अब अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखी है, सी आउट सेकेंड, सी इन सेकेंड एंड सी आउट सेकेंड। अब यहाँ पे एक्चुअली देर इज डिफरेंट, this my example is different than the YouTube lecture example. Won't the equal operator be called? नहीं जी, equal operator तब call होगा when there is an object already created. When I'm creating an object and I'm assigning it another object, then the copy constructor is called, and the right hand side object is passed as a constant reference to that copy constructor, right? ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है दानियाल। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं और उसको कुछ असाइन एक और ऑब्जेक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त कंस्ट्रक्टर ही कॉल हो रहा होता है डेफिनेटली। इस वक्त इस डिफ ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो अगर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो उसको पास क्या कर रहे हैं, हम उसको एक और ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इनफैक्ट दिस इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर दैट इज कॉल्ड हियर, राइट। गुड। अच्छा जी, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से यूजर डिफाइंड टाइप के ऑब्जेक्ट पे सी आउट कॉल किया है और उसके बाद सी इन भी कॉल किया है, which is definitely not gonna run unless कि मैं कंपाइलर को बताऊं कि ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता कि ये जो सेकंड है दिस इज ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। दिस इज यूजर डिफाइंड टाइप और इसकी टाइप है ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सी आउट कैसे करना है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट का मीनिंग मुझे डिफाइन करना है। इट मीन्स इसके अंदर ये जो ऑपरेटर है जिसको आप लेफ्ट शिफ्ट भी कह सकते हैं, ये बेसिकली स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है, ठीक है। स्ट्रीम का मतलब ये है वो जो इनपुट और आउटपुट का स्ट्रीम की स्ट्रीम है उसको, उसी को मैं रेफर कर रहा हूँ कि स्ट्रीम इंसर्शन, स्ट्रीम के अंदर कुछ ऐड करने की बात हो रही है। तो स्ट्रीम के अंदर ऐड करना है और जो ऐड करना है वो सी आउट से करना है, वो सेकंड से करना है। तो अब यहाँ पे ये जो एक स्टेटमेंट है लाइन नंबर 121 पे, जरा इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। इन दिस स्टेटमेंट इफ यू सी के दिस स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इट हैज टू ऑपरेंड्स, सी आउट एंड सेकंड, राइट। अगर दो ऑपरेंड्स हैं तो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेटर, दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। इसके दो ऑपरेंड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड के फॉर एवरी बाइनरी ऑपरेटर द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज अ, कोई टाइप कर सकते हैं इसका आंसर कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बाइनरी ऑपरेटर इज ऑलवेज पास्ड एज, टाइप कर सकते हैं अगर कोई, यस। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा दिस के तौर पे पास होती है, यानी कि जो फंक्शन कॉल होता है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑब्जेक्ट पे कॉल होता है, ठीक हो गया। अब अगर आप इस स्टेटमेंट में देखें तो इस स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, सी आउट, यानी कि अगर सी ये ऑपरेटर कॉल होगा तो सी आउट एज जो सी आउट ऑब्जेक्ट है इसका फंक्शन कॉल होगा। ये बात समझ आ रही है ना कि अगर इस ऑपरेटर को, ये जो 121 लाइन पे है, इस ऑपरेटर को मुझे एग्जीक्यूट करना है तो इस ऑपरेटर का जो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है दैट इज सी आउट, तो सी आउट का फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन का नाम होगा ऑपरेटर स्ट्रीम इंसर्शन। अब अगर स्टेटमेंट को समझे तो इसका मतलब ये है कि हमें देखें, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेटर, राइट। इसका एक लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है एक राइट हैंड ऑपरेंड है। तो अगर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को देखें तो वो है सी आउट। हमने अभी ऊपर वाली स्टेटमेंट में भी देखा था कि हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड माइनस फर्स्ट हो रहा था इसमें माइनस वाज अ बाइनरी ऑपरेटर, राइट। तो अगर माइनस बाइनरी ऑपरेटर था तो इसके लेफ्ट हैंड साइड जो सेकंड ऑब्जेक्ट था, ये सेकंड ऑब्जेक्ट पास हुआ था एज दिस पॉइंट, यानी कि जो फंक्शन कॉल हुआ था वो सेकंड पे कॉल हुआ था और जो फर्स्ट था वो एज अ पैरामीटर पास हुआ था।
तो ये तो बाइनरी ऑपरेटर का जो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर रूल बताता है, जिसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, ये वो रूल है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा फंक्शन कॉल करना है और राइट हैंड साइड को एज अ पैरामीटर पास होना है। तो अब हमें पता चल गया कि जो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है, इट वुड बी कॉल्ड ऑन द सी आउट ऑब्जेक्ट। यानी कि हमें इसका मतलब क्या है, अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि वी नीड टू राइट दिस फंक्शन इनसाइड द क्लास ऑफ सी आउट ऑब्जेक्ट। सी आउट की क्लास कौन सी होती है? सी आउट की क्लास होती है ओ स्ट्रीम। ठीक है, तो इसका मतलब ये बन रहा है मेरी स्टेटमेंट का कि हमें स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर जो है इसको ओवरलोड करना पड़ेगा, और अगर हमने इसे ओवरलोड करना है इसी सिंटेक्स के मुताबिक जिसके मुताबिक अभी लिखा हुआ है हमने, तो इसे ओ स्ट्रीम की क्लास के अंदर ओवरलोड करना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन ओ स्ट्रीम क्लास के अंदर होनी चाहिए। ओ स्ट्रीम क्लास तो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी क्लास है, उस फाइल को तो हम एक्सेस भी नहीं कर सकते, उसके अंदर जाके कोड तो देख नहीं सकते, वो तो बाइनरी में अवेलेबल है हमारे पास। इट मींस वी कैन नॉट राइट अ फंक्शन इनसाइड द ओ स्ट्रीम क्लास। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या थी कि हम ओ स्ट्रीम की जगह ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसकी डाटा टाइप में लिख देते। तो अगर हमने इसकी डाटा टाइप में लिखना है तो उसका मतलब ये है कि हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड इस तरीके से बनाया जा सकता है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये तो एक्चुअली बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मतलब इस तरीके से हमारे कोई डाटा टाइप यूज नहीं होती। तो इट मीन्स कि हम ऑपरेटर की डेफिनेशन बिल्कुल ही अननेचुरल वे में कर रहे हैं, विच इज डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में डिस्कस ये किया था कि वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट एन ऑपरेटर, जस्ट थिंक इफ इट्स एडिंग समथिंग some convenience to the user or not. If it's not adding something, some convenience into the user's experience, then we should not use operator overloading. तो अभी ये जो सिंटेक्स जो मैंने हाईलाइट किया है, इट्स नॉट गोना मेक सेंस टू एनीवन जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जानता है कि सेकंड के साथ ही ऑपरेटर लिखा है और सी आउट एज अ पैरामीटर पास हो रहा है, डजंट मेक एनी सेंस। तो इट मीन्स कि हमने इसी ये जो नोमेनक्लेचर है इसी को हमने फॉलो करना है, और हमने इसके मुताबिक फॉलो करें तो सी आउट या ओ स्ट्रीम की क्लास में हमें वी नीड टू राइट द फंक्शन, और वो हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उसकी सिर्फ बाइनरी अवेलेबल है। कैन इट एक्चुअली वर्क? ऑफ कोर्स इट कैन वर्क, लेकिन इसके वर्क करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज ओनली इम्प्लीमेंटेड टू ईज आउट द यूजर, राइट? अगर उसे ये जो चीज लिखी हुई है, इफ इट डज मेक सेंस तो करना चाहिए, अदरवाइज डोंट ओवरलोड एनी ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर हम उसको बिल्कुल अदर वे अराउंड उल्टे केस में ओवरलोड कर देंगे तो इट वुड एक्चुअली कंफ्यूज द यूजर इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग इन। तो इन दैट केस हमने अब ये देख लिया कि हम सी आउट की क्लास में ओवरलोड कर नहीं सकते। अब इसकी डेफिनेशन ऑफ कोर्स डिफरेंट है, यही कॉन्सेप्ट आपको बताना था। दानियाल ने पूछा कि हाउ विल डिफाइन दिस ऑपरेटर। तो हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि सी प्लस प्लस हमें एक्चुअली दो ऑप्शन देता है। वी कैन डिफाइन एन ऑपरेटर एज अ मेंबर फंक्शन, और सेकंड ऑप्शन ये होता है कि एज अ नॉन मेंबर फंक्शन। और नॉन मेंबर फंक्शन यूजुअली तब बनाना होता है, जिसकी पहली रीजन मैंने ये बताई थी जो इस ऊपर वाली एग्जांपल में भी हो रहा था, कि व्हेन एवर एन ऑपरेटर इज नॉट गोना चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑफ द ऑपरेंड्स, तो उसे नॉन मेंबर बनाना चाहिए। और दूसरा केस ये वाला है जो कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट किस्म का केस है। दिस केस इज एक्चुअली this is actually you can say कि we must overload this stream insertion and extraction operator as non-member functions. बाकी ऑपरेटर्स में हमारे पास ऑप्शन था कि हम खुद डिसाइड कर लें, अगर स्टेट चेंज नहीं कर रहा तो नॉन मेंबर बना दें, स्टेट चेंज कर रहा है तो मेंबर बना दें, और अगर दोनों को ना भी करें तब भी फर्क नहीं पड़ता। बच्चों ये लाइंस ना लगाएं, इफ यू आर डूइंग दैट तो ना करें। ठीक है, हाँ जी, हम इनके मेंबर फंक्शन बनाएंगे। एक बच्चे ने भी क्वेश्चन प्राइवेटली पूछा कि इंसर्शन एक्सट्रैक्शन को मेंबर फंक्शन ही बना सकते हैं, इनको हम नॉन मेंबर फंक्शन बनाएंगे। तो नॉन मेंबर फंक्शन बनाने का जो सिंटेक्स सी प्लस प्लस हमें अलाउ करता है वो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। तो पहले स्ट्रीम इंसर्शन को देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखें ये जो सिग्नेचर है, हम इसको ज़रा रीड करते हैं। अब यहाँ पे किया ये है कि मैंने कंपाइलर को प्रोवाइड कर दिया एक फंक्शन जिसमें दो ऑपरेंड्स पास होते हैं। एक ऑपरेंड ओ स्ट्रीम टाइप का है और जो दूसरा ऑपरेंड है वो ऑब्जेक्ट टाइप का। ठीक है, पहला ऑपरेंड है ओ स्ट्रीम टाइप का, दूसरा ऑपरेंड है ऑब्जेक्ट टाइप का। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट आएगी मेन के अंदर तो कंपाइलर डिसाइड कर लेगा कि हाँ जी मेरे पास एक फंक्शन मौजूद है जो कि ओ स्ट्रीम या एक्सट्रीम जो स्ट्रीम
इंसर्शन पे कॉल हो सकता है और उसको दो ऑपरेंड इस टाइप के मिल जाते हैं, एक सी आउट टाइप का, एक सेकेंड टाइप का। तो वो उस केस में जिसमें लेफ्ट हैंड साइड सी आउट है और राइट हैंड साइड ऑब्जेक्ट टाइप है, तो इस फंक्शन को कंपाइलर कॉल कर लेगा। ठीक है जी। तो अब इसका सिग्नेचर देख लें तो इसमें नाम तो हमें क्लियरली पता था क्या होना चाहिए इसका। इसमें जो पहला ऑपरेंड है वो है ओस्ट्रीम टाइप का, ऑफ कोर्स सी आउट वाली टाइप का, लेकिन यहाँ पे इसके साथ रेफरेंस लिखा हुआ है। कोई गेस कर सकता है कि इसके साथ रेफरेंस क्यों लिखा हुआ है? टाइप करेंगे। नो वन? नो, वी आर चेंजिंग सी आउट एक्चुअली। देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग अ कॉपी सी आउट इन सिंगलटन। एग्जैक्टली, ठीक है जी, ये फाइनली ठीक आंसर है। हमने जब सिंगलटन डिजाइन या पैटर्न की डिस्कशन की थी तो वी डिस्कस्ड कि सी आउट इज एन एग्जांपल या सी इन इज एन एग्जांपल, कि ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट होते हैं, हम इनका दूसरा ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। तो अगर मैं यहीं पे इनका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश भी करूँ, फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे, कि मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं ओ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसका नाम आउट टू रखता हूँ, तो अगर मैं इस कोड को कंपाइल करूंगा तो ये कोड नहीं चलेगा। ठीक है जी। ये मैंने सेव नहीं किया, अच्छा सेव करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकूँ। ठीक है जी। तो सिंगलटन जो है वो ऑब्जेक्ट है सी आउट, तो मैं उसका ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकता, मजबूरी में मुझे यहाँ पे इसका रेफरेंस रिसीव करना पड़ा। ठीक है, कांस्टेंट रेफरेंस नहीं है। कांस्टेंट इसलिए नहीं है कि हमने इसमें चेंजेस करनी है। जब भी मैं सी आउट के थ्रू कुछ लिखता हूँ तो सी आउट की अपनी स्टेट चेंज होती है, यानी कि वो जो जिस बफर को सी आउट मैनेज कर रहा है, दैट बफर इज अपडेटेड, ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ ऐड होता है, और उसके बाद वो जो बफर है उस बफर की जो पोजीशंस हैं कि अभी तक कहाँ तक डाटा राइट हो चुके हैं, कहाँ पे आगे राइट करना है, वो भी चेंज होती है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस सी आउट ने अपने पास, ये क्लास है इसने अपने पास मेंटेन की होती है, तो दैट इन्फॉर्मेशन गेट्स अपडेटेड। दैट इज व्हाई वी नीड अ नॉन कांस्टेंट रेफरेंस, राइट। ओके, इसके बाद जो सेकंड ऑपरेंड है दैट इज ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट टाइप का हमने पास की, इसको हमने कांस्टेंट भी बनाया और रेफरेंस भी बनाया, ऑफ कोर्स फॉर एफिशिएंसी एंड फॉर डिजाइन पर्पसेस। कांस्टेंट इसलिए बनाया कि चेंज नहीं करना, रेफरेंस इसलिए बनाया कि एफिशिएंटली पास हो जाए। रिटर्न टाइप को अगर आप देखें तो रिटर्न टाइप भी रेफरेंस है। रेफरेंस इसलिए है कि हम इसकी दूसरी कॉपी बना नहीं सकते, और पास इसलिए रिटर्न टाइप में ओस्ट्रीम इसलिए है कि हम इसको ऐसे भी यूज करना चाहेंगे कभी कभी, कि हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल कि मैं इसकी कैस्केडिंग कॉल कर दूं, इसलिए हमने इसको रिटर्न भी किया। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करना चाहता तो मैं एक कैस्केडिंग कॉल कर सकता था। पहली कॉल के अगेंस्ट सी आउट सेकेंड होता, सारी जो भी कोड था वो एग्जीक्यूट होता, उसके बाद दोबारा सी आउट रिटर्न हो जाता। जब सी आउट दोबारा रिटर्न हो जाता तो इस स्टेटमेंट की जगह पे सी आउट आ जाता, और वो सी आउट इस फर्स्ट के साथ कॉल हो जाता। तो इन दैट केस हम कैस्केडिंग कॉल कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस फंक्शन में ऐसी कैस्केडिंग कॉल करने के लिए हमने फंक्शन इसको रिटर्न भी किया आउट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी बॉडी में क्या हो रहा है, सिंपल कि मैंने आउट को यूज किया और मैंने गेट फंक्शन को यूज किया। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि गेट फंक्शन को जैसे मैंने कॉल किया है, डी इज अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड वी हैव पास्ड इट एज कांस्टेंट बाय डिजाइन। इफ दिस इज अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट तो वी नीड गेट एक्स टू बी अ कांस्टेंट फंक्शन, अदरवाइज ये कॉल ही नहीं हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि ये गेटर्स को मैंने कांस्टेंट बनाया है, ये यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन इज कैन वी कॉल द कैस्केडिंग फॉर आउट इन द ऑफ स्ट्रीम फंक्शन लाइक वी जस्ट डिड इन मेन? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इनफेक्ट किया हुआ भी है। अगर आप देखें कि मैंने यहाँ पे डी डॉट गेट एक्स, उसके बाद आगे एक और कॉमा प्रिंट किया और उसके बाद वाई किया और उसके बाद एंडल भी किया, तो ये कैस्केडिंग ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि गेट एक्स रिटर्न्स एंड रिटर्न्स अ फ्लोट वैल्यू, नाउ दिस इज अ स्ट्रिंग एंड देन अनदर फ्लोट वैल्यू, देन दिस इज एंडल, तो दिस इज a cascading call between different primitive data types. ठीक है जी, instead of this string all other are primitive data type. ठीक है, सेकंड वे सेकंड, यहाँ पे सेकंड कॉस्ट नहीं था, जहाँ पे हमने कॉल किया मेन में वहाँ पे सेकंड कॉस्ट नहीं था।
we received it as a constant in the function. So this function doesn't change the state of that object, right? This is our design. We do not want D to be changed, or we do not want this second to be changed in this operator function. See, या दूसरे केस में हम यूजर को क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि we won't change this parameter in this function. ठीक है, D object in this function. ओके तो यहाँ पे मैंने जो कुछ डिस्प्ले करना था, जिस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना था, कॉमा डालना था, न्यू लाइन डालनी थी, जो कुछ करना था कर दिया। उसके बाद एंड पे मेरी फंक्शनलिटी कंप्लीट हुई, तो मैंने कैस्केडिंग कॉल के लिए आउट को रिटर्न भी कर दिया। यहाँ पे कमेंट में मैंने लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे बेशक सी आउट भी लिख लेते तो सेम चीज थी, ठीक है। सी आउट इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, तो कोई फर्क नहीं डलता, ठीक है। मैं सी आउट को यूज करूँ या आउट को यूज करूँ, दिस डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो मैंने इतना यूज कर लिया। उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने सी इन को भी ओवरलोड किया हुआ है। सीन को अगर ओवरलोड किया हुआ है तो सेम कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल सेम कोड को अगर कॉपी पेस्ट भी करें, वहां पे ओ स्ट्रीम का जो चेंज है दैट इज के द क्लास इज नाउ आई स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम नॉट आउटपुट स्ट्रीम। द रेस्ट इज सेम। मैंने ऑब्जेक्ट के नाम चेंज कर दिया इन रेफरेंस का। और यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक डिफरेंट हो जाएगी। लॉजिक क्या है कि मैंने यूजर से इनपुट लेनी है इन दिस ऑब्जेक्ट डी। तो ऑब्जेक्ट डी जो है दिस इज नाउ नॉट अ कांस्टेंट। स्ट्रीम इंसर्शन में कांस्टेंट था, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन में कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आई वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, डी ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। तो स्टेट चेंज करने के लिए मैंने कांस्टेंट पास नहीं किया, और सेकेंडली मैंने इसका रेफरेंस रिसीव किया। रेफरेंस इसलिए रिसीव किया कि मैं इसके अंदर जाके यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, इसके मेंबर्स में वैल्यू सेट कर रहा हूँ। तो आई नीड अ रेफरेंस टू दी ऑब्जेक्ट जो कि मेन से आया था। अगर रेफरेंस नहीं पास करूंगा यहाँ पे तो दैट वुड बी एन एरर। मैं एक लोकल ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर रहा हूँ जो कि मेन में जाके लूज हो जाएंगी। मेन में वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। तो मेन से मैंने जो ऑब्जेक्ट पास किया, यहाँ पे मैंने उसे एज अ रेफरेंस रिसीव किया, एंड नाउ आई एम गोना चेंज इट्स मेंबर्स। और कैसे चेंज करूंगा? ओके जी, जी मैंने ऐड कर दिया। वो एक्चुअली मुझे लेक्चर के दौरान ऊपर नज़र आता है, जब भी कोई वेटिंग रूम में होता है तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो उसके बाद ये ऑपरेटर कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वी माइट नॉट चेंज डी इन सम केसेस। देखें, ये ऑपरेटर है इनपुट का, और इनपुट लेनी है डी के अंदर, तो चेंज तो होगी। मतलब ये फंक्शन तो कुछ और कर भी ना, दिस इज एन इनपुट फंक्शन ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो लॉजिक किया वो ये किया कि हमारे पास दो मेंबर्स थे, दोनों के लिए मैंने लोकल वेरिएबल्स बनाए। उन लोकल वेरिएबल्स में यूजर को मैसेज दिखा के वैल्यू इनपुट ले ली, और वैल्यू इनपुट लेने के बाद अब मेरे पास ए और बी वेरिएबल्स के अंदर वो वैल्यूज पड़ी हैं जो मैंने सेट करनी है। तो वो मैंने यहाँ पे सेट के फंक्शन कॉल करके सेट करनी है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, फॉर एग्जांपल वी प्रिंट पैटर्न्स बाय टेकिंग इनपुट नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे जो क्लास है उसमें स्पेसिफिकली यही लॉजिक चाहिए कि आई वांट न्यू डाटा वैल्यूज इन दी मेंबर्स। अगर आपकी कोई ऐसी एग्जांपल हो जहाँ पे कोई क्लास बनी हो, जिस क्लास के अंदर कोई डाटा मेंबर्स भी हैं, और आप इनपुट ले रहे हैं और आपने डाटा मेंबर्स को सेट नहीं करना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पैटर्न प्रिंटिंग में ये वाला ऑपरेटर तो वो लोड नहीं होगा ना सीन का। नहीं, देखें, अगर आपने आप कह रहे हैं कि डाटा मेंबर्स चेंज ना हो, अगर आप इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट में तो हमेशा डाटा मेंबर्स चेंज होंगे ना। जो आप कह रहे हैं प्रिंट करने वाला, वो शायद आउटपुट का ऑपरेटर हो सकता है। आई वांट टू डिस्प्ले समथिंग बेस्ड ऑन दी वैल्यूज इन द डाटा मेंबर। if that is the case, of course that would be कि मैं I do not want to change anything in the object and I want to display something here जो कि which is based on the data values in the data members of the parameter. In that case, the operator that you would be overloading is stream insertion. You want to display something. हम overload कर रहे हैं stream extraction. We want something to be added or changed in the data.
ठीक है, तो ऑफ कोर्स डिफरेंट ऑपरेटर वो लोड कर रहे हैं ना। तो आप जो कह रहे हैं नहीं, ये जो आउट और इन है, दीज आर रेफरेंसेस टू सी इन एंड सी आउट। ये नए वेरिएबल्स नहीं है, नए ऑब्जेक्ट्स नहीं है। अगर आप देखें तो ये जो इन है, दिस इज अ रेफरेंस टू सी इन, और ये जो आउट है, दिस इज अ रेफरेंस टू सी आउट। मैं सी इन और सी आउट इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कॉल इन को ऐसे किया हुआ है। बाय द वे, इनको आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सी आउट और सी इन के साथ ही कॉल करें, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इस स्पेसिफिकल इस स्पेसिफिक केस में मुझे सिर्फ मेन जो हमारा कंसोल है उसी पे इनपुट और आउटपुट करनी है। इसीलिए यहाँ पे ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम लिखा हुआ है। तो ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम होगा तो डेफिनेटली ओ स्ट्रीम के केस में यहाँ पे कंफर्म है कि सी आउट ही होगा ऑब्जेक्ट, और कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। और यहाँ आई स्ट्रीम लिखा हुआ तो डेफिनेटली ये जो रेफरेंस है ये सीन का है, क्योंकि वो सिंगलटन ऑब्जेक्ट है इस क्लास के, और कोई ऑब्जेक्ट बन भी नहीं सकता। ठीक है जी। अच्छा, नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आप, जो भी कर लें, इनकी जगह आप जो मर्जी लिख लें, इनपुट लिख लें या कुछ भी लिख लें। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन वेरिएबल्स का, इन रेफरेंसेस का नाम चेंज करें। ठीक है, आउट की जगह कुछ भी लिख लें, इनकी जगह कुछ भी लिख लें, लेकिन ऑफ कोर्स ये वही रेफरेंसेस हैं जो सी आउट और सी इन के। ठीक है, अच्छा लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, किसने क्वेश्चन पूछा है कि हम नॉन मेंबर फंक्शन को कॉन्स्ट बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि कॉन्स्ट की डेफिनेशन ये होती है कि करंट ऑब्जेक्ट जिसने इसको कॉल किया है उस पर चेंज ना कर सके। तो हमेशा यूजर डिफाइंड क्लासेस के ऊपर ही कॉल होता है। ठीक है, कॉन्स्ट मेंबर बनता है, कॉन्स्ट फंक्शन बनता है। जो फंक्शन फ्री फंक्शन होता है उसे कॉन्स्ट बनाने की कोई सेंस नहीं बनती। अच्छा, किसने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा था बीच में? क्योंकि वो दोबारा से वीडियो स्टार्ट हुई, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सबको सेम दोबारा से सिनेरियो बन चुके। ठीक है जी। चलिए, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट होगी, लेट्स स्टार्ट। तो सीन ऑपरेटर का जो मैं बता रहा था वो ये था कि यहाँ पे हमने, ठीक है जी, थैंक यू जी। सीन ऑपरेटर का हमने जब उसको ओवरलोड किया तो उसकी लॉजिक ये थी कि हमने दो लोकल वेरिएबल्स में इनपुट ली, और वो जो इनपुट ली वो सिंपल सीन करके हमने ले ली, ए और बी लोकल वेरिएबल्स में। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट पास हुआ था डी, उस ऑब्जेक्ट क्योंकि उसका रेफरेंस पास हुआ था, हमने उसके सेट एक्स फंक्शन को कॉल किया और उसमें ए और सेट वाई फंक्शन में बी पास करके जो यूजर ने वैल्यूज दी थी वो हमने इनपुट ले ली। ठीक है, और एंड पे हमने दोबारा इनको रिटर्न कर दिया। इट मीन्स कि हमने आई स्ट्रीम का जो सी इन ऑब्जेक्ट था उसका रेफरेंस जो रिसीव किया था वही रेफरेंस हमने वापस एज अ रेफरेंस ही रिटर्न कर दिया, ताकि कैस्केडिंग कॉल्स हो सके। यानी कि हम सी इन के साथ भी यहाँ पे डायरेक्टली एक कॉल के बाद दूसरी कॉल लिख सकते थे यहाँ पे, विदाउट राइटिंग द ऑब्जेक्ट अगेन, सी इन अगेन। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है? ये एस के आर एस जी से क्या बनता है? कोई क्वेश्चन है? 2013। चलिए, कैन वी call the overwritten cout in overloading? ये रिकर्सिव डेफिनेशन ही कह रहे हैं आप, कि अपने आप को ही कॉल कर लिया और खुद ही इसे दोबारा कॉल होता रहेगा, तो ये तो अनलिमिटेड हो जाएगा ना। तो ओवर हम इसको रिकर्सिव तो नहीं करेंगे ना, कॉल कर सकते हैं लेकिन दैट वुड बी अ रिकर्सिव डेफिनेशन। ठीक है जी। तो जो रिकर्सिव डेफिनेशन है उस केस में क्या होगा कि आप कह रहे हैं कि मैं इसके अंदर इसी को खुद को कॉल कर लूँ, है इस ऑपरेटर को खुद ही कॉल कर लूँ अपनी बॉडी में, तो वो तो रिकर्जन चल पड़ेगी, इनफाइनाइट रिकर्जन तो कभी खत्म ही नहीं होगी ना। कैन वी, अच्छा जी दोबारा मुझे देखने दें, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हो गए। कैन वी कॉल दी, कैन वी कॉल दी ओवर रिटर्न सी आउट इन ओवरलोडिंग? अगर सी आउट को ही ओवरलोड किया है, यानी कि स्ट्रीम इंसर्शन को ही ओवरलोड किया, तो उसमें दोबारा अपने आप को कॉल करेंगे तो वो रिकर्सिव हो जाएगा और वो इनफाइनाइट रिकर्जन बन जाएगी। ठीक है, सी इन में से सी आउट को कॉल करने की सेंस नहीं बनती। चलिए, असाइनमेंट जो कर रहे हैं ये डायरेक्ट डाटा मेंबर में नहीं हो सकती। नॉन मेंबर फंक्शन है, नॉन मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई आई नीड टू कॉल दीज एक्सेसर्स एंड म्यूटेटर्स। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको मेंबर पब्लिक मेंबर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद वाइल ओवरलोडिंग सीन कॉलिंग ओवरलोडिंग सी आउट नहीं, ऑफ कोर्स इसकी सेंस नहीं बनती।
रादर देन सेटर्स, नहीं वो सेटर्स वाली बात मैंने बता दी कि सेटर को कॉल अगर नहीं करेंगे तो हम एक्सेस कैसे करेंगे यहाँ पे। ये अगर सेटर को कॉल नहीं करेंगे तो डी के डाटा मेंबर्स को एक्सेस कैसे करेंगे। ये जो फंक्शन है दिस इज नॉट अ मेंबर फंक्शन, तो दिस डी द प्राइवेट डाटा मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल इन दिस फंक्शन। ठीक है। ये स्ट्रिंग है जी, जिसने सी आउट किया इनपुट एक्स ना, तो ये तो मैंने मैसेज लिखा हुआ है ना, इनपुट द वैल्यू ऑफ एक्स, ये यूजर को मैसेज दिखाया था। इनपुट द वैल्यू ऑफ वाई, ये यूजर को मैसेज दिखाया था। और इनपुट यहाँ पे ली थी ए में और बी में। उसके बाद ये जो वैल्यूज थी उनको मैंने सेटर फंक्शन कॉल करके सेट कर दिया। फ्रेंड फंक्शन एग्जैक्टली मैं ये नोट करता काफी देर से लोग जो क्वेश्चन पूछने घूम फिर के बाद फ्रेंड फंक्शन पे आ जानी है। जो फ्रेंड फंक्शन ये कॉन्सेप्ट होता है, और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के डिजाइन को तबाह कर देता है। ठीक है। तो यू इफ यू आर यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड इन योर कोड, इट मीन्स कि यू हैव डिजाइंड योर कोड वेरी बैडली। ठीक है। आपने डिजाइन ही अच्छा नहीं किया हुआ तो आपको फ्रेंड की जरूरत पड़ी है। अगर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर सेटर्स और गेटर्स प्रॉपरली बनाए हुए हैं तो यू डू नॉट नीड एनी फ्रेंड ऑब्जेक्ट और एनीथिंग। ठीक है। तो बाकी लोगों के लिए फ्रेंड की मैं शायद डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। जिन्होंने तलाल ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दी कि फ्रेंड बनाना किसी फंक्शन को या किसी क्लास को, मेरे ख्याल में दिस इज मतलब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के पैराडाइम से बाहर जा रहे हैं। तो ये बैड प्रैक्टिस है, नहीं करना चाहिए। उसके बगैर काम हो सकता है अगर आपके पास अच्छा डिजाइन आपकी क्लास का बना हुआ है। Can you explain again that why OSTream can be a member function? OSTream member function इसलिए नहीं हो सकता कि आप देखें कि कॉल कैसे हुआ है। लेफ्ट हैंड ऑपरेंड जो है वो सी आउट है। इसी तरह सीन में भी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड जो वो सीन है। तो जो फंक्शन हम लिख सकते हैं मेंबर फंक्शन, वो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड है उसकी क्लास में लिखना है। तो सी आउट की क्लास तो ओ स्ट्रीम है। ओ स्ट्रीम क्लास तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, वो तो बाइनरी में अवेलेबल है सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज के अंदर। और उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, और अगर हमने उसको चेंज कर भी दिया तो फिर हमें अपना कंपाइलर दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइलर दोबारा उसकी बाइनरी बना के अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी कि मैंने खुद से अपने कंपाइलर का कोड चेंज कर लिया है, उसकी लाइब्रेरी चेंज कर ली है और मैं उसमें कोई नई फंक्शनैलिटी डाल रहा था। तो वो हम नहीं कर रहे, सी प्लस प्लस कंपाइलर को नहीं चेंज कर रहे, हम अपनी क्लास को ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं। तो हमने एक फंक्शन फ्री फंक्शन बना लिया दैट रिसीव्स टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप जो कि इसका इस कॉल को चाहिए। तो कंपाइलर जब नेम मैंगलिंग करके फंक्शन कॉल रिट्रीव कर रहा होगा तो उसे पता चल जाएगा दिस फंक्शन इज सूटेबल टू बी कॉल्ड फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है जी। दिस स्टेटमेंट और फसी इन दिस स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए हमें इनको मजबूरी में मतलब मजबूरी में नहीं, हमें बाय डिजाइन ही इनको फ्री फंक्शन बनाना है, इनको नॉन मेंबर मेंबर फंक्शन नहीं बनाना। फ्रेंड फंक्शन के बारे में अहमद मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया था। फ्रेंड फंक्शन बनाना ऊप के डिजाइन की खिलाफ वर्जी है, कभी ना करें। ठीक है। अगर आप कर रहे हैं इट मीन्स कि आपकी क्लास में कुछ और चीज़ें ऐड हो सकती थी जो आपने नहीं की और आपने फंक्शन को फ्रेंड बनाने का शॉर्टकट यूज़ करने की कोशिश की है। ठीक है। तो बाकी लोगों के लिए फ्रेंड की डिटेल अभी मैं नहीं डिस्कस करूँगा। अगर आप देखना चाहें तो मैं भी आप कहीं से पढ़ लें। फ्रेंड मेरे ख्याल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का पार्ट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो मैंने यहाँ पे सी आउट कॉल किया, सीन कॉल किया और उसके बाद मैंने आगे अभी ये जो कोड है इसको भी हम कमेंट करते हैं और जितना कोड अभी लिखा था इसको रन करते हैं जी। हमने कोई चीज़ चेंज की ऊपर, ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो मेन मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाए थे दो, उनके अगेंस्ट तो कोई आउटपुट नहीं आनी थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफ इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट किया। ठीक है। तो एक डिफ नया ऑब्जेक्ट बन गया था, ऑफ कोर्स वो हो गया था, उसकी आउटपुट अभी हमने देखी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे पहली दफा ये सेकंड को सी आउट किया, तो सेकंड के अंदर क्या पड़ा हुआ था 5 एंड 6। तो जो ये सी आउट में नजर आ रहा है दैट इज द वैल्यूज ऑफ सेकंड। अच्छा, इसके बाद मैंने सीन किया सेकंड, और सीन के अंदर मैंने देखें यहाँ पे इनपुट एक्स और इनपुट वाई दो मैसेज दिए थे। तो अभी मेरा कोड जो है वो इनपुट एक्स पे वेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 2, उसके बाद इसने मेरे से वाई की इनपुट ली, मैंने एंटर कर दिया 3, और उसके बाद ये जो मैंने मेन में दोबारा डिस्प्ले किया था इनपुट के बाद, तो देखिए सेकंड ने जो चीज डिस्प्ले किया दैट इज 2 एंड 3। तो मैंने सीन वाली कॉल के अंदर चेंज किया था और सी आउट वाली कॉल में वैल्यूज देख ली। ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन कॉल हो रहे हैं दोनों।
क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन है जी, वी हैव टू राइट इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ऑफ कोर्स जहाँ पे आईओस्ट्रीम या इनपुट आउटपुट करनी होगी वहाँ पे आईओस्ट्रीम डेफिनेटली इंक्लूड करना होगा, ऊपर किया हुआ भी है। ठीक है जी, तो आईओस्ट्रीम इंक्लूड करना ही है जहाँ पे इनपुट आउटपुट चाहिए। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे मैंने यहाँ पे जो काम किया है यहाँ पे मैंने इसको अब मैंने एक और चीज, अब हम थोड़ा सा चेंज करने लगे। हमने जो पहले डिस्कशन की थी दैट वाज कि हमने नॉन मेंबर बाइनरी फंक्शन बना लिए। जी, जहां जहां पे आप सी इन या सी आउट को यूज करेंगे, जिस जिस फाइल के अंदर, हर उस फाइल के टॉप पे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम होना चाहिए। और क्योंकि आईओस्ट्रीम के ऊपर ऑफ कोर्स वो जो हमारी कंडीशनल कंपाइलेशन है वो हुई होगी, तो डेफिनेटली वो री इंक्लूड नहीं हो रहा होगा या रिकम्पाइल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, उसकी एक ही कापी आएगी। तो हमें जहां जहां पे आईओस्ट्रीम को यूज किया होगा, मतलब सी इन सी आउट को यूज किया होगा, वहां पे आईओस्ट्रीम डेफिनेटली इंक्लूड करना है। अच्छा, तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया दैट इज अबाउट कि वी हैव बाइनरी फंक्शंस, पहली बात बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड देन वी हैव सीन टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेंबर बाइनरी फंक्शंस। ठीक है, नॉन मेंबर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और ये जो ऑपरेटर्स ओवरलोड किए, स्ट्रीम इंसर्शन, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, इनके बारे में इनके लिए मस्ट है कि ये नॉन मेंबर के तौर पे ही होंगे। बाकी ऑपरेटर्स जैसे कि ये माइनस वाला ऑपरेटर था, इसके ऊपर चॉइस है, बनाएं नॉन मेंबर या ना बनाएं। आप नॉन मेंबर बना सकते हैं। जब नॉन मेंबर बनाएंगे तो ये सेकंड वाला पैरामीटर है, ये आपको जाएगा एज इस तरह से। यहाँ पे पहला ऑपरेंड होगा और दूसरा ऑपरेंड होगा, दो ऑपरेंड्स होंगे। उस केस में सेकंड को फर्स्ट ऑपरेंड और यहाँ वाला जो राइट हैंड साइड है उसको सेकंड ऑपरेंड आप बनाएंगे। ठीक है, ये जो कोड लिखा हुआ मैंने, ये एक ही फाइल है, सीपीपी फाइल, इसी में क्लास लिखी हुई है और इसी के क्लास के एंड हो जाने के बाद ये फंक्शन लिखा हुआ है। मेन से ऊपर है दोनों फंक्शंस। ठीक है जी हाजरा। नहीं, ये गेट एक्स स्टैटिक फंक्शन नहीं है। स्टैटिक फंक्शन के साथ स्कोप रेजोल्यूशन लगा के कॉल करते हैं ना। तो मैंने गेट एक्स को तो नॉर्मल मेंबर पब्लिक फंक्शन बनाया हुआ है। अगर आप मल्टीपल फाइल्स बनाएंगे तो इस फंक्शन को आप मेन के ऊपर सिंपल एक दफा लिख देंगे। डेफिनेटली मेन के अंदर अगर किसी क्लास को हम यूज कर रहे थे, इस ऑब्जेक्ट क्लास को यूज कर रहे थे, तो वो मेन वाली फाइल में टॉप पे इंक्लूड हुई होगी। तो यहाँ पे अगर आप पैरामीटर ऑब्जेक्ट टाइप का लिखेंगे तो वो चलेगा कोड। ठीक है, मल्टीपल फाइल्स में ये वाला फंक्शन ऐसे ही रहेगा, मेन के ऊपर लिख दें, सिंपल इज दैट। चलिए, अब यहाँ से आगे चलते हैं। मैंने अभी एक चीज आपको बताई है, मतलब दैट वाज वन साइड ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि नॉन मेंबर फंक्शंस की ऑपरेटर ओवरलोडिंग की है। ठीक है, और स्पेसिफिकली मैंने जिन दो ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया, ये दोनों ऑपरेटर्स इसके अलावा किसी भी तरह से ओवरलोड नहीं हो सकते। इन्हें नॉन मेंबर बनाना मस्ट है। कुछ ऑपरेटर्स को हम चाहें तो मेंबर बनाएं, चाहे तो नॉन मेंबर बनाएं, जैसे कि ये माइनस का था। हमने अभी मेंबर बनाया, एक्चुअली इसको जो डिजाइन हमने क्लास में पहले डिस्कस किया था, इसे नॉन मेंबर होना चाहिए था, क्योंकि उस केस में ये दोनों ऑपरेंड्स चेंज नहीं हो रहे। जब दोनों ऑपरेंड्स चेंज नहीं हो रहे तो नॉन मेंबर बनाना ज्यादा बेहतर चॉइस है। लेकिन अभी इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं किया, मे बी हम फ्राइडे के लेक्चर में ऐसा करें। अब ये एक थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट होने लगा है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। यहाँ पे मैंने अब ये ऑपरेटर ओवरलोड किया है, ये ऑपरेटर है प्लस प्लस ऑपरेटर। ठीक है जी, प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पहली लाइन जो है लाइन नंबर 126, उसके ऊपर प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, और जो 127 है उसके ऊपर पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है जी, ये क्लियर है सबको, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे अगर हम इनको ओवरलोड करेंगे, सबसे पहला केस तो ऑफ कोर्स हम इस ऑपरेटर को देख लें। दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर, इसमें एक ही पैरामीटर है, जो कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर इट मींस कि इसके अंदर एक ही पैरामीटर जाएगा। सेकेंडली देखें, ये जो ऑपरेटर है, इट नीड्स टू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो इसको पास किया। ठीक हो गया, तो दिस शुड बी अ मेंबर ऑपरेटर। ठीक है, मेंबर फंक्शन होना चाहिए। सेकेंडली, अगर ये मेंबर ऑपरेटर होना भी चाहिए तो इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये देखें आप, कि ये मेंबर ऑपरेटर तो है, लेकिन इसके ऊपर सी प्लस प्लस का कंपाइलर आपको रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि ये प्लस प्लस सेकेंड कभी भी
ऐसे नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता कि इस ऑब्जेक्ट को चेंज ना करे। तो रिस्ट्रिक्शन इसमें आ जाती है कि दिस शुड ऑलवेज बी अ मेंबर फंक्शन। इसे आप नॉन मेंबर बनाने की कोशिश करेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऑपरेटर्स को लाजमी मेंबर बनाना होता है, कुछ ऑपरेटर्स को लाजमी नॉन मेंबर बनाना होता है, और कुछ ऑपरेटर्स पे चॉइस होती है। तो अभी मैंने आपको जो इस लेक्चर में 2 एग्जांपल करा रहा हूँ, पहली एग्जांपल थी जिसमें लाज़मी नॉन मेंबर बनाना था। अब ये एग्जांपल है जिसमें लाज़मी मेंबर फंक्शन बनाना है। तो अब हम ये जो सॉरी स्ट्रीम की जगह कह रहा हूँ, हम इसको जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री और पोस्ट, इसको ओवरलोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट की कॉल डिफरेंट है और इनकी फंक्शनैलिटी भी डेफिनिटली डिफरेंट है। मतलब जिस तरह हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं तो इनकी फंक्शनैलिटी भी डिफरेंट होती है। तो फंक्शनैलिटी डिफरेंट होने के लिए कंपाइलर रिक्वायर्स कि मैं प्री वाला डिफरेंट कॉपी प्रोवाइड करूँ और पोस्ट के लिए डिफरेंट कॉपी प्रोवाइड करूँ। तो डिफरेंस इनमें सिंपल ये, सिग्नेचर में जो नाम है वो तो चेंज नहीं मैं कर सकता। तो जो चेंज मैं कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है या इसी तरीके से पोस्ट डिक्रीमेंट होगा, वो नीचे लिखा हुआ है मैंने, उसके अंदर हम एक डमी आर्गुमेंट पास करते हैं। इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी डाटा टाइप हमेशा इंटीजर होती है, इसमें कोई और डाटा टाइप आप पास नहीं करेंगे और इसके वेरिएबल का नाम भी नहीं लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो दैट इज एन एरर, आप नहीं इसको यूज कर सकते। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ डमी ऑपरेटर, डमी आर्गुमेंट जो मैंने पास किए जस्ट फॉर द कंपाइलर टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू कॉपीज ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस के बारे में आता हूँ, बताता हूँ। ये प्री इंक्रीमेंट फंक्शन है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट फंक्शन है। तो प्री इंक्रीमेंट के अंदर अगर आप इम्प्लीमेंटेशन देखें तो मैंने बहुत सिंपल की है कि 2 डाटा मेंबर्स थे, दोनों को मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया और करंट ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कर दिया, उसके रेफरेंस को रिटर्न किया। रेफरेंस इसलिए रिटर्न किया कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो करंट ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट चेंज हो चुका हुआ है और वो एफिशिएंटली रिटर्न हो जाए। ठीक है, ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन थी। तो अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो ये x प्लस प्लस और y प्लस प्लस करके दोनों डाटा मेंबर्स को अपडेट करके करंट ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर देगा। बाय रेफरेंस है तो वही रिटर्न हो रहा है। अब दूसरे फंक्शन पे जाते हैं जो कि पोस्ट इंक्रीमेंट का फंक्शन है। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट की आप चेक करें, जो डेफिनेशन है वो ये होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये ऑपरेटर कॉल हुआ है उसे चेंज होना है, लेकिन करंट स्टेटमेंट में जो रिजल्ट मिले वो पुराना वाला होना चाहिए, वो अपडेटेड वाला नहीं होना चाहिए। यही लॉजिक है। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, यही लॉजिक इंप्लीमेंट किया है कि एक लोकल ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें पुरानी वैल्यूज को सेव कर दिया, और जो एंड पे रिटर्न किया वो कौन सी वैल्यूज को रिटर्न किए, पुरानी वैल्यूज को। जो बीच में ये स्टेटमेंट है ये मैं रीयूज कर रहा हूँ इसी ऊपर वाले प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो मैंने इसको कॉल कर दिया करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो करंट ऑब्जेक्ट की अपनी वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन पुरानी वैल्यूज मैंने पहले से स्टोर की हुई थी टेम्प के अंदर, तो पुरानी वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी लेकिन करंट ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ट्रिकी सा है लेकिन इंटरेस्टिंग है कि करंट ऑब्जेक्ट की पुरानी वैल्यू सेव कर ली और वो पुरानी वैल्यूज एंड पे रिटर्न कर दी, बीच में मैंने करंट ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, तो करंट ऑब्जेक्ट में अपडेट हो रही है, टेम्प में पुरानी वैल्यूज पड़ी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉल भी किया हुआ है प्री इंक्रीमेंट को और पोस्ट इंक्रीमेंट को। ये इनपुट वाले कोड को और इस डिफरेंस वाले कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ अभी, और मैं रन करके दिखाता हूँ आपको कि ये इंक्रीमेंट कैसे चल रहा था। ठीक है जी, डिक्रीमेंट वाले को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। किसने पूछा जी कि इंट का पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या मकसद है? तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि कंपाइलर डिफरेंस, एक्चुअली ये मैंने भी नहीं चाहा, ये कंपाइलर ने मुझे मस्ट कहा कि जब भी आप यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो, दोनों केसेस में आप इसकी जो 2 कॉपीज प्रोवाइड करेंगे उनकी डिफरेंशिएशन, उनको डिफरेंशिएट ऐसे किया जाएगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में इंटीजर होगा और प्री वाले में नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ सिग्नेचर चेंज की है, नथिंग एल्स। और कंपाइलर को इसका मतलब एग्जैक्टली पता है कि जिसमें इंटीजर पास हुए दैट इज अ पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट वाली डेफिनेशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों हो सकते हैं, और जिसमें नहीं पास हुआ दैट इज अ प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हाँ जी, इंट वाला पोस्ट होता है। ठीक है, तो कंपाइलर ने सिर्फ ये देखना है कि अगर आपने इंक्रीमेंट को कॉल किया है तो पोस्ट इंक्रीमेंट को कॉल किया या प्री इंक्रीमेंट को कॉल किया। अगर आपने पोस्ट इंक्रीमेंट को कॉल किया तो इट विल फाइंड अ फंक्शन जिसका नाम ऑपरेटर प्लस प्लस होगा और उसमें इंटीजर आर्गुमेंट पास होता होगा। और अगर आपने प्री इंक्रीमेंट किया तो वो वाला डेफिनेशन ढूंढेगा जिसमें आपने इंटीजर आर्गुमेंट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन हम कॉल नहीं कर सकते। अच्छा, आप यहाँ पे कह रहे थे
यहाँ पे मैं ऑपरेटर प्लस प्लस की जगह स्टैटिक दिस प्लस प्लस एग्जैक्टली कर सकता हूँ मैं, ठीक है, स्टैटिक दिस प्लस प्लस कर सकता हूँ, ठीक है, ये ठीक से स्टेटमेंट है, इसमें कोई मसला नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं, सही। अच्छा जी, तो अभी मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। चलिए जब इसको कॉल कर लेते हैं और बस हमारा टाइम ओवर हो गया, इसको कंक्लूड करते हैं। तो अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट थी, सेकंड के अंदर वैल्यूज इनिशियली पड़ी थी 5 एंड 6, अगर आप ये नीचे देखें स्क्रीन पे तो ये 5 एंड 6 वैल्यू पड़ी हुई थी सेकंड के अंदर। तो मैंने जब प्री इंक्रीमेंट पहले कॉल किया तो प्री इंक्रीमेंट के फंक्शन में जाके 5 इंक्रीमेंट हो गया, 6 इंक्रीमेंट हो गया, तो जो प्रिंट हुआ दैट इज 6 7। अच्छा हाँ, नहीं दानियाल आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, स्टेरिक दिस प्लस प्लस नहीं होना चाहिए था, प्लस प्लस स्टेरिक दिस होना चाहिए था, ठीक है, यू आर राइट। हम आउटपुट को देख लेते हैं। ऐसे सबको समझ आ गया कि मैंने जो स्टेरिक दिस प्लस प्लस लिखा था एक्चुअली दैट वाज कॉलिंग द पोस्ट इंक्रीमेंट डेफिनेशन, जो कि गलत था, तो हमें प्री इंक्रीमेंट कॉल करने के लिए प्लस प्लस स्टेरिक दिस करना चाहिए। तो दानियाल आपने ठीक कहा है, इसको बाकी लोग भी नोट कर लें। अच्छा इसके बाद सेकंड में अगर देखें 127 लाइन के ऊपर मैंने ये सी आउट किया सेकंड प्लस प्लस, इट मींस कि जो वैल्यू इस ऊपर वाली स्टेटमेंट 126 लाइन पे आई थी अपडेटेड वैल्यू, वही वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन सेकंड की अपनी स्टेट अपडेट हो जाएगी, तो जो प्रिंट हुआ दैट इज 6 7, जो कि ठीक है। और उसके बाद जब दोबारा मैंने चेक करने के लिए कि क्या ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया था कि नहीं, तो मैंने सी आउट किया दोबारा सेकंड को, तो उसमें अपडेटेड वैल्यू 7 एंड 8 नजर आ गई। जी फाइज आप कह रहे हैं कोड इज फाइन, नहीं कोड इज रिकर्सिव और वो इनफाइनाइट रिकर्जन चल रही है जो कि खत्म कभी नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है, वो रिकर्जन कभी खत्म नहीं हो रही, इसलिए वो ठीक नहीं था। ये कोड मैं क्लासरूम पे अपलोड भी कर दूंगा, मैं शायद ये वीडियो भी अपलोड करूंगा अगर मुझे टाइम मिल गया, क्योंकि शायद इसने वीडियो पॉज की थी और ये बहुत लंबी लेंथ की वीडियो भी अगर हुई तो मैं इसको 2 टुकड़ों में करके अपलोड कर दूंगा और आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट दोनों इंप्लीमेंट हो गए। अगर यहीं पे आप डिक्रीमेंट को भी कॉल कर लें तो उनकी भी लॉजिक बिल्कुल सेम थी, उसी लॉजिक के मुताबिक ये भी कॉल हो जाएगा। तो डिक्रीमेंट में भी मैंने एक इसका प्री डिक्रीमेंट और एक पोस्ट डिक्रीमेंट वाला वर्जन बनाया है और लॉजिक एग्जैक्टली सेम, बस प्लस प्लस की जगह मैंने इसको माइनस माइनस कॉल किया है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने जो माइनस माइनस के आगे ब्रैकेट लिखे ये प्री वाले वर्जन को कॉल कर रहा है, ठीक है जी, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट वाले वर्जन को कॉल कर रहा है, ठीक है जी। मैंने अनडू करके एग्जैक्टली देख ली, मैंने ये इसको ऑपरेटर प्लस वाले को कॉल किया था इस तरह से, मैंने स्टैटिक दिस प्लस प्लस करके कॉल नहीं किया, तो वो रिकर्सिव डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो अभी इसको अगर रन कर लें हम तो मैंने सेव किया था, हाँ जी। तो अभी अगर आप देखें तो सेकंड पे जो डिस्प्ले होता है दैट वाज 7 एंड 8, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्री डिक्रीमेंट कॉल हो रहा है, तो पहले 7 एंड 8 माइनस माइनस हुआ तो 6 एंड 7 प्रिंट हो गया, उसके बाद पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है तो पुरानी वैल्यू 6 7 ही डिस्प्ले हो गई, और एंड पे जो सी आउट किया तो डिक्रीमेंटेड वैल्यू 5 6 मुझे वापस मिल गई, ठीक है। तो टाइम इज ऑलरेडी अप, बस समराइज कर देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया दैट इज कि हम बाइनरी ऑपरेटर्स को नॉन मेंबर फंक्शन के तौर पे कैसे ओवरलोड कर सकते हैं, जिसमें हमने स्ट्रीम इंस्ट्रक्शन एंड एक्सट्रैक्शन को ओवरलोड किया, उसके बाद हमने यूनिटी ऑपरेटर्स को एज अ मेंबर फंक्शन ओवरलोड किया और उनमें स्पेसिफिकली हमने प्री और पोस्ट दोनों अलग अलग वर्जन को ओवरलोड किया, ठीक है जी। तो एनी कन्फ्यूजन सो फार, अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ लें, वरना हम कंक्लूड करते हैं मीटिंग को।